Hello students. So today we will discuss some important questions that are already appeared in various IIT exams. So this session is very important for you, that how to approach the electrode potential questions that are already appeared in previous IIT exams. Okay. Now the first question is that you have determined the electrode potential of the half cell H2 dipped in a solution of acetic acid. Now it means that here you have to take into account that whatsoever H plus concentration is written here is not the true representation of H plus, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में H प्लस आयंस जितनी मोलैरिटी दे रखी होती है वो पूरे का पूरा अवेलेबल नहीं होता. रीज़न क्या होता है? रीज़न ये है इस केस में कि यहाँ पर जो आपके पास H प्लस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया हुआ है. तो इस केस में H प्लस की वैल्यू क्या आएगी? इस केस में H प्लस की वैल्यू आएगी √KAC. श्योर. तो H प्लस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? आंसर कितना आएगा आपके पास? 1.74. तो अब हम क्या पहले कैलकुलेट करेंगे? पहले कैलकुलेट करेंगे हम √KAC. तो Ka की जगह हमारे पास Ka की वैल्यू पुट दी, C की जगह C की वैल्यू पुट कर दी. अगर हमें अल्फा गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम C अल्फा आल्सो. तो सिंस द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट हैज़ बीन गिवन टू यू, you determine the value from here. Okay, so after that you will find out that how will you. So first then we will go to what? You will go to the pH. pH is equal to what? pH is equal to minus log H plus. Why I written that? Because E electrode in this case will be minus 0.05916 into pH of the solution. We already been discussed that value in single electrode potential of hydrogen. Okay, so our main focus will be in order to determine the pH of this. So what will be the answer? The answer will be minus log (2.5). Take 2.49 as 2.5. So when you calculate the value of log, this is the value you are able to get. Okay, so the value is 2.6 from this value of pH. Now you already know that for a single electrode this is the value in case of SHE. So pH value comes out 2.6. You will put out what? You will put out the value here 0.05916 into 2.6. It comes out to be minus, okay, 0.1539. Okay, so this is the value in case of when hydrogen electrode is dipped in a weak acid, that is acetic acid, having H plus concentration 0.37. Are you getting the question clear? Okay, are you okay with that? So whenever a SHE will come to you or a hydrogen electrode come to you, immediately know that E electrode is equal to minus 0.05 into pH. Okay, go to the previous class where we have already where we have done the derivation of this. Okay, next question is very interesting. Here the hydrogen electrode is dipped in a HCl solution having pH value 4.4. since HCl is a strong acid, so alpha is equal to 1, so C is equal to H plus in this case. Okay, so pH given is okay. Are you sure about that? Now here first you have to write the equation so that you are able to understand what is going on. Now here what will you do first? First you will write the electrode equation in the standard reduction form.
It is the IUPAC ruling that you will write the equation in SR forms, reduction form. So you write the equation in reduction form. After that, what will happen? This is the concentration of product, that is reactant. So in this case, what is happening? In this case, pressure of hydrogen is not 1. That you have to understand. Pressure of hydrogen is given what? 2 atmospheric. So this is the big difference that you are going to have here in this question. Okay. So 2 is the pressure of the hydrogen gas that is adsorbing over the platinum electrode divided by the concentration of H plus concentration. Okay. Then after that, what will you do? Now here in this case, what will you do? You will write the half electrode equation like that. In place of reaction quotient, you will write the value of the quotient here. Okay. Clear? So you write the value of reaction quotient here. Now what you will do? You will make sure 2 will come down. So what will happen now? So answer will be minus 0.05916 by 2. Log 2, you know that is 0.301. This is minus 2 log H plus. Now take minus inside here. So again rewrite it. Rewriting will be what? 0.05916 by 2, 0.301 plus 0 minus log H plus. Take what? Take minus inside. So minus log H plus becomes what? It becomes equal to pH. Into 0.05916 by 2. So pH value is what? pH is 4.4. So it is 0.301 plus 8.8 into 0.5916 by 2. When you calculate that, the value comes out to be how much? The value comes out to be 0.2691 volts. Okay. Are you okay with the situation now? Now this value is what? This value is in negative terms. What is that? It is in negative term here in all the cases. Okay. Now you can see that. So let's look at the question once more. Now what we have done, that you are given an half electrode in which HCl is at pH 4.4 and it is in equilibrium with the gas at 2 atmospheric pressure. So what is the half electrode potential of this type of half cell? So going by that, what is the first step? First step is to write the given equation in reduction form. You will find out the reaction quotient. Then next case, the reaction quotient values are put in there, and after that look at that what we are doing. Okay, just doing a mathematical operation. Okay, and it leads to you to a. So please go through this question very carefully. This is very important question. Okay, nice. Now the next question is very important question. The next question is a half cell in which what happens? AgCl saturated is dipped in silver. What is that written? AgCl saturated solution Ag. Okay. So that you have to find out. Now everyone knows that the E naught value of silver electrode is this. What is given? E naught electrode value of silver 0.8 volts. And from that you have to calculate the इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. आप चेक किए ध्यान से. इसका मतलब क्या हुआ? सिल्वर की जो रॉड है वो एक ऐसे सोल्यूशन में डिप्ट है जिसमें क्या है? सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ व्हाट? सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ AgCl is there. This is
AgCl सैचुरेटेड। ओके, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि Ag प्लस हमें मालूम नहीं है, Ag प्लस हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें मालूम है AgCl का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन यहाँ पर है। तो जो AgCl का सोल्यूशन है उसमें क्या होगा, Ag प्लस और Cl नेगेटिव दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आप मान सकते हैं Ag प्लस की जो वैल्यू है वो S के इक्वल है। तो यहाँ पर KSP की वैल्यू क्या है, वो है S का स्क्वायर, Ag प्लस और Cl। तो S की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ KSP। तो KSP की वैल्यू इतनी है यहाँ पे 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 दे रखी है आपको। तो ये हो जाएगा 1.414 इंटू 10 पावर माइनस 5। क्या आ गई है, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई। आर यू ओके विद दैट, क्लियर। तो अब आपके सामने क्या वैल्यू आ गई, ई इलेक्ट्रॉड इज इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रॉड माइनस 0.05916 बाय एन लॉग क्यू होता है यहाँ पे। तो जब इलेक्ट्रॉड जब यहाँ पे क्या हो तो क्यू यहाँ पर क्या है आपका Ag प्लस की वैल्यू, क्यू यहाँ पर क्या है Ag प्लस की वैल्यू है, यस और नो। श्योर। तो कितनी वैल्यू आ गई, ई इलेक्ट्रॉड इज इक्वल टू 0.8 गिवन है क्वेश्चन में माइनस 0.05916 बाय 1 लॉग 1 बाय 1 पॉइंट अंडरवुड KSP, तो जो KSP क्या है चेक कीजिए, ये वैल्यू है। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियरली अंडरस्टूड नाउ। तो E इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.05916 बाय 1। तो ये ऊपर में आगे क्या आ गया, ऊपर में आगे वैल्यू आ गई आपके पास 1 बाय 1.41 इंटू 10 पावर माइनस 5। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 1.087 के आसपास। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियरली अंडरस्टूड नाउ। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको जानना है, ठीक है ना। आर यू ओके विद द सिचुएशन नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड अपने ही एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिप्ड है, Ag अपने ही एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिप्ड है। तो सिल्वर आयन इन इक्विलिब्रियम विद Ag प्लस आयन ऑफ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो Ag प्लस कंसंट्रेशन वहाँ से लेके आप वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियरली अंडरस्टूड। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2012 IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक पैराग्राफ में है, मैंने इसको छोटा करके थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें क्या है, जिसमें जो STD है इसका मतलब है सैचुरेटेड, कि जो हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट है उसमें भी M डिप्ड इन M2 प्लस है और कैथोडिक में भी M डिप्ड इन M2 प्लस है। डिफरेंस ये है कि जो एनोडिक कंपार्टमेंट है उस केस में M2 प्लस कंसनट्रेशन क्या है, उतनी ही है जितना MH2 का सैचुरेशन वैल्यू का वैल्यू होती है। आर यू गेटिंग दैट और नॉट। फिर वो नेक्स्ट बोल रहा है कि जो EMF है सेल की वो 0.059 है, बताइए डेल्टा G की वैल्यू क्या है और KSP की वैल्यू क्या है इस केस में। आर यू गेटिंग दैट और नॉट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन थे, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है ताकि एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। तो पहला तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको क्वेश्चन समझने की, ठीक है।
तो पहला है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप चेक करेंगे अगर ध्यान से, तो आपके सामने क्या आ रहा है, कैथोड और एनोड सेम है। जब कैथोड और एनोड सेम हो तो क्या होता है, कैथोड और एनोड अगर सेम हो तो उस केस में डेल्टा ई नॉट सेल जो है वो ज़ीरो होता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है दैट बोथ कैथोड एंड एनोड आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो उसके में क्या होगा, ई नॉट सेल ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल ज़ीरो हो जाएगा। श्योर अबाउट दैट। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बात है वो क्या है कि आपको डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी निकालने क्या करेंगे, आपको डेल्टा जी निकालने के लिए जो सबसे पहले वैल्यू आपको आएगी वो आएगी माइनस एन एफ ई सेल की वैल्यू। तो यहाँ पर जो n है वो 2 है। कैसे मालूम पड़ा, आप चेक कीजिए क्वेश्चन में कि यहाँ पे m2 प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज दी चार्ज है। तो 2 इंटू फेराडे कितना है यहाँ पे 96,500। और जो ई सेल है आपको दिया है 0.059। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियरली अंडरस्टूड। नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 11,400 जूल्स। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपके पास सिचुएशन क्या आएगी, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -11.4 किलो जूल। क्या है ये, डेल्टा जी की वैल्यू है। क्लियर। एन की वैल्यू कितनी है 2, एफ की वैल्यू 96,500 और ई सेल गिवन है क्वेश्चन में आपको। आपने ये सारी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आएगा -11.4 किलो जूल। आर यू गेटिंग दैट इन योर माइंड, वेरी मच श्योर। ओके। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसमें से KSP निकालने का। किसके निकालने का, KSP निकालने का। आर यू श्योर, क्लियर। तो आपको KSP निकालना है MX2 का। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो सेल है वो दे रखा है M डिप्ड इन M2 प्लस इन ए सोल्यूशन ऑफ MX2 सैचुरेटेड। क्लियर। दूसरे सोल्यूशन में जो M2 की वैल्यू है वो -3 मोलर है। तो ऑब्वियस है, पहली पॉइंट तो ये है जो ई नॉट सेल है वो ज़ीरो है। श्योर, क्लियर आपको ये बात। अब एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड लेफ्ट में है। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे देखेंगे तो जो मेटल है इट इज़ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बी गिविंग यू व्हाट, तो ये एनोड है। जो कैथोड है उस पर क्या हो रहा है, कैथोड पर देखिए आप लोग, तो ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, जो मेटल आयन है दे आर एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव यू मेटल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो M2 प्लस आयन है दे आर गिविंग यू M2 प्लस। रीज़न क्या है, जो प्योर मेटल है इनकी एक्टिविटी तो 1 होती है। तो MgO2 प्लस है वो क्या है, एनोडिक कंपार्टमेंट की कंसनट्रेशन। और जो M2 लेफ्ट में है वो क्या है, कैथोडिक कंपार्टमेंट की कंसनट्रेशन। आर यू श्योर। तो जो रिएक्शन कोशेंट आएगा वो क्या आएगा, रिएक्शन कोशेंट विल बी M2 प्लस ऑफ व्हाट, एनोडिक कंपार्टमेंट डिवाइड बाय M2 प्लस ऑफ व्हाट, तो आंसर है कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो जो ई सेल की वैल्यू है, तो ई नॉट सेल थी तो कैथोड, तो ई नॉट सेल -0.059 बाय n log Q। ये वैल्यू तो पता ही आपको। अब ये ई नॉट सेल कितना है, तो आंसर है 0 है ऑलरेडी। श्योर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई सेल -0.059/2 log M2 प्लस एनोड पता नहीं है हमें, लेकिन M2 प्लस कैथोड पता कितना है, 10⁻³ गिवन है क्वेश्चन में। तो आप ई सेल की जगह ई सेल की वैल्यू पुट कीजिए, कितना है 0.059 इज इक्वल टू 0.059, सॉरी यहाँ पर आपका जो सिंबल है वो नेगेटिव में जाएगा। इसमें जाएगा यहाँ पे नेगेटिव में, -0.2 है,
लॉग क्या है यहाँ पे, लॉग है यहाँ पे m2 प्लस 10 पावर -3। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए, ये नेगेटिव सिंबल यहाँ आ गया तो -2 आ गया, -2 लॉग m2 प्लस 10 पावर -3। तो एंटी लॉग जब निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 पावर -2 m2 प्लस बाय 10 पावर -3। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो m2 प्लस है आपका किस में आया, एनोडिक कंपार्टमेंट में, किसी को आ गया 10 पावर -5 मोलर के। श्योर। अब जो mx2 है वो तो ये है, तो जो m प्लस कंसंट्रेशन है वो s के इक्वल है, और जो ये किसके इक्वल है, 2s के इक्वल है। इसके लिए कितनी है, 2s के इक्वल है कि नहीं, क्लियरली अंडरस्टूड नाउ। तो KSP की वैल्यू क्या होगी, KSP की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ m2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ s नेगेटिव का स्क्वायर, s इंटू 2s का होल स्क्वायर, आंसर इज 4s क्यूब। तो 4 इंटू 10 पावर -5 की पावर 3, आंसर इज 10 पावर -15। इज दैट क्लियर टू यू, इजी, दैट इज टू इजी। ठीक है बेटे, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन को दोबारा से देखते जाएंगे ध्यान से, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 से चेक करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है आपको, कि आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जहाँ पर आपको क्या गिवन है, एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है। क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है तो ऑब्वियस है E0 सेल क्या होगी, इसमें 0 हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर डेल्टा जी निकाल लेंगे, ठीक है। इसके में याद रखिएगा डेल्टा जी की वैल्यू, नॉट की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि E0 सेल 0 है, ठीक है। तो डेल्टा जी के लिए -NF सेल, तो दीज वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन, सो आपने निकाल लिया। फिर आपने क्या किया, उसमें से E0 सेल 0 होगी क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, कैथोड और एनोड, ये कैथोड है और एनोड का रिएक्शन कहाँ है, येलो कलर में लिखा हुआ है आपके सामने। तो आपके सामने यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया गया, बस मैथमेटिकली सॉल्व किया गया है। अब आफ्टर दैट ओनली मैथ्स इज इन्वॉल्व, ठीक है ना, क्लियर। तो आप चेक करते जाइए ध्यान से। श्योर। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको समझ आना चाहिए। आर यू श्योर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो भी IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें भी एक कंसंट्रेशन सेल ही गिवन है, Ag और ये Ag की, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि AgCl जो सैचुरेटेड सॉल्ट है, इट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ KCl है, और जो AgBr सॉलिड है, इट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ KBr है, एंड बोथ आर डिप्ड इन सिल्वर इलेक्ट्रोड। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, AgCl सॉलिड प्लस KCl और AgBr, एक केस में AgCl और KCl है, दूसरे केस में AgBr और KBr है, बोथ आर डिप्ड इन। तो ये जो आपके दो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि बताइए EMF क्या है सेल की, और फिर उसके बाद जो कह रहा है करेक्ट पोलैरिटी बताइए क्या होगी, जबकि KSP की जो वैल्यू है वो 298 केल्विन पर आपको गिवन है, KSP ऑफ AgCl एंड KSP ऑफ AgBr। देखिए एज ए स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी कंसंट्रेशन सेल तभी वर्किंग करता है जब क्या होता है, जब कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो कंसंट्रेशन है इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एनोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है जी। तो ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर आपको ये बात। तो अब हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। आर यू श्योर, ठीक है जी। तो प्रोसीड करने का तरीका क्या है हमारे पास कि तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ रही है, एनोडिक हाफ में क्या है, एनोडिक हाफ के अंदर जो हमारे पास KSP है वो है क्लोरीन की, कितनी है यहाँ पे, तो KSP की वैल्यू है यहाँ पर 2.8 इंटू 10 पावर -10,
क्लियर आपको ये बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि जो KCl जो Ag प्लस तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें है पता है कि ये 0.2 है। क्या है ये 0.2? कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, पोटाशियम क्लोराइड से है हुई। कॉमन आयन शुड बी टेकन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये रूल है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो Ag प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर? Ag प्लस की वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 10⁻⁻10। तो अकॉर्डिंग टू द रूल आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये Ag प्लस कहाँ पर आया? ये Ag प्लस है एनोडिक कंपार्टमेंट का, जिसको आप लिखते हैं C1। व्हाट इज दैट? C1। सेम टू सेम आपके पास क्या आएगा? कैथोडिक हाफ में क्या आएगा? कैथोडिक हाफ के अंदर आपके पास KSP की वैल्यू है, वो है Ag प्लस और Br नेगेटिव। जो KSP की वैल्यू है वो क्या है? KSP की वैल्यू है 3.3 इंटू 10⁻⁻13। Ag प्लस पता नहीं है आपको, लेकिन Br नेगेटिव पता है। कितना है? 10⁻⁻3 दे रखा है 0.001। क्वेश्चन चेक कर लीजिए। तो Ag प्लस क्या आएगा आपके पास? सो Ag प्लस इन कैथोडिक हाफ will be equal to what? 3.3 इंटू 10⁻⁻10। तो ये C2 है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो C1 इज कमिंग आउट वट मोर देन C2। वो पावर 10 में है, पावर किस में है? ये पावर C1 पावर 9 में है, और जो C2 है वो पावर -10 में है। तो -9 इज ग्रेटर देन -10। इसका मतलब क्या हो गया? साफ सी बात है, इस सेल की EMF जो ऐसा लिखा हुआ है, मैंने लिखा क्वेश्चन में, IIT के क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, तो जैसे लिखा गया है EMF की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या हो गया? जो क्वेश्चन है वो यही पूछ रहा है कि पोलैरिटी क्या करेंगे भाई? तो आंसर एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, पहले हम EMF निकाल लेते हैं। खैर, तो EMF की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो पहले आप देखेंगे कैथोडिक हाफ में क्या हो रहा है। तो कैथोडिक हाफ के अंदर आपका जो Ag है, इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू Ag प्लस, सॉरी, Ag प्लस इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू Ag, सो दैट इज C2 बिकमिंग दिस। और एनोड पे क्या हो रहा है? एनोडिक हाफ में जो Ag है, इट इज़ बिकमिंग Ag प्लस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास C1 है। तो आंसर आएगा Ag प्लस। वाई प्योर मेटल को लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि उससे इक्विटी वन होती है। तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2। तो जो रिएक्शन कोशेंट है वो है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर आपको ये बात? श्योर। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर है E0 सेल, जो कि 0 है, -0.0596 बाय n log Q। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। आंसर आ गया -0.05916 log C1 बाय C2। क्लियर? तो ये आ जाएगा -0.05916 log, ये प्लस का कर दीजिए, हो जाएगा C2 बाय C1। तो ये 0.05916 log C2 की वैल्यू कितनी है? तो चेक करेंगे तो C2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? C2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.3 10⁻⁻10। ठीक है जी, कितनी वैल्यू आ रही है? 3.3 इंटू 10⁻⁻10। और C1 की वैल्यू कितनी है? 1.4 10⁻⁻9। इफ़ यू सॉल्व दैट, व्हाट इज द आंसर? If you solve that, the answer comes out to be -0.037. So it means delta E cell is negative, it means delta G is positive. So it is non-spontaneous. Okay,
If it is non-spontaneous, what does it means? It means you have to rectify your cathode and anode. The anode should be made cathode and cathode should be made anode. Are you getting that or not? So cell circuit has to be corrected now. So what will happen now? So in the given question by the IIT, AgCl dipped in Ag is anode and AgBr dipped in Ag is cathode. Now on the answer coming out, since cell EMF comes out to be negative, it means you have to reverse now. What is the correct representation now? Correct representation is that silver dipped in AgBr in KBr is what? Is anode, and AgCl dipped in Ag is the, so correct version is this. So okay, आर यू श्योर अबाउट दैट? ईजी ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. आर यू गेटिंग दैट? वेरी नाइस. हाँ बेटे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन में क्या पूछा गया यहाँ पे कि ई नॉट जो है सिल्वर इलेक्ट्रोड की 0.8 वोल्ट है, सिंगल हाफ सेल की. जो के एस पी है एजीआई की वो क्या है? जो एजीआई की के एस पी है वो है 8.7 इंटू 10⁻⁻17. एजीआई मतलब सिल्वर आयोडाइड. तो सिल्वर आयोडाइड की यहाँ पर आपको के एस पी गिवन है 8.7 10⁻⁻17. वो कह रहा है बताइए कि पोटेंशियल क्या होगा इस हाफ सेल का जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एजीआई में डिप होगा. पहली बात तो ये है, अगर 1 मोलर एजी प्लस में डिजॉल्व है तो फिर तो पोटेंशियल है 0.8, लेकिन अगर वो डिजॉल्व है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एजीआई में तो बताइए फिर क्या होगा. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो कह रहा है ई नॉट बताइए क्या है यहाँ पर, आई नेगेटिव एजी का ई नॉट बताइए. असल में ये क्या है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोड है, इसको बोलते हैं हम अनायन इनसॉल्युबल सॉल्ट मेटल इलेक्ट्रोड. क्या बोलते हैं इसको? देखिए ये क्या है यहाँ पे अनायन, ये अनायनिक पोर्शन है, ये क्या है इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट है, और साथ में क्या है मेटल है. तो क्या बोलते हैं अनायन इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट एंड मेटल इलेक्ट्रोड. तो ये जो है एक ख़ास तरह का इलेक्ट्रोड है. तो वो कह रहा है इस इलेक्ट्रोड की आपको क्या निकालनी है, ई नॉट वैल्यू निकालनी है. तो क्वेश्चन आपके पास 2 हैं इस क्वेश्चन में, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये. एज ए स्टूडेंट आपको लर्निंग करते हुए बड़ा मज़ा आएगा इसको. ठीक है, तो आगे चलते हैं हम. तो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रोड वैल्यू ऑफ सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड सिल्वर आयोडाइड. इसका मतलब क्या हुआ, जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है आपके पास वो एजीआई में डिप्ड है, ये पता लगाना आपको. ठीक है जी, श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो अब सबको मालूम है सिंगल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, उसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है जी, तो इसका नाम है रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगी 1/Ag+. अब ठीक है जी, अब Ag+ क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पर Ag+ है, चेक करते हैं कैसे आएगा. तो Ag+ कहाँ से लेना है, तो ये AgI से आएगा. तो AgI क्या है, Ag+ और I नेगेटिव, सॉरी इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी एस है. इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर होगा KSP = Ag+ एंड I नेगेटिव. तो आंसर आ जाएगा S² = KSP. सो S विल बी √of KSP. आर यू श्योर? तो ये आपके पास क्या आ गया, Ag+ की कंसनट्रेशन क्या आ गई है, Ag+ की कंसनट्रेशन. तो जहाँ Ag+ होगा वहाँ S मतलब √of KSP. तो ई इलेक्ट्रोड क्या होगा, ई इलेक्ट्रोड होगा ई नॉट इलेक्ट्रोड -0.059/n
log Q। अब log Q क्या है चेक करते हैं। तो 1/AG प्लस, तो आंसर आएगा E इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E नॉट 0.8 गिवन है क्वेश्चन में माइनस 0.059/1 लॉग 1 बाय क्या है यहाँ पे AG प्लस की वैल्यू क्या आ रही है S, जो कितनी है अंडर रूट KSP के। चेक कर लीजिए आप, ठीक है, ये रूट KSP आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे पास ही वैल्यू आ गई, तो आंसर आएगा 0.8 माइनस 0.059/1 लॉग। अब ये KSP ऊपर जाएगा और ये जो प्लस का हाफ है माइनस का हाफ बन जाएगा, तो नीचे आएगी वैल्यू ये माइनस हाफ की। तो आंसर आएगा -0.8 प्लस 0.059/2। ये 2 कहाँ से आया, 1/2 का 2 आया, लॉग KSP, लॉग KSP। क्लियर। तो ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.059/2 log 8.7 into 10 power minus 17. When you solve it completely, it comes out to be minus 0.475. So answer is 0.325 volts. ये क्या है, E नॉट ऑफ AG प्लस टू AG है, ये वैल्यू है E नॉट AG प्लस AG प्लस 2AG व्हेन सिल्वर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgI। यू गेट दैट आंसर इन योर माइंड नाउ, ठीक है, पता लग गया बेटे आप लोगों को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। आर यू गेटिंग दैट बेटे, आर यू श्योर, वेरी मच श्योर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आएंगे। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है E नॉट ऑफ वट, E नॉट ऑफ I नेगेटिव AgI और AG, इसका क्या निकालना है आपको, E नॉट वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, इसके लिए हम पहले बेसिक क्वेश्चन में याद करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए कैसे होगा। AgI एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन to give you what, to give you Ag plus I नेगेटिव। तो ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए ये 1 इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। आर यू श्योर अबाउट दैट। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, जो Ag प्लस है एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव यू व्हाट Ag। अगर मैं ऑपरेट करता हूँ 1 - 2, 1 - 2, तो देखिए क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, AgI विल गिव यू व्हाट, ये माइनस से प्लस इलेक्ट्रॉन से माइनस इलेक्ट्रॉन कट गया, सिल्वर से सिल्वर कट गया, ये Ag प्लस माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा Ag प्लस I नेगेटिव। इट मीन्स 1 - 2 गिव अस द रिक्वायरमेंट। तो आंसर आ जाएगा डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 गिव अस द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसमें क्या होगा, ये हो गया माइनस N1F E नॉट 1 माइनस ऑफ माइनस N2F E नॉट 2 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K। श्योर। तो यहाँ पर N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू 1 है, चेक कर लीजिए क्वेश्चन में, ठीक है ना, चेक कर लीजिए 1 है ना। तो उससे क्या होगा, तो यहाँ से आप काट दीजिए, तो F को कॉमन बाहर ले लिया आपने, तो आंसर क्या आ गया माइनस E नॉट 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, E नॉट 2 गिव्स यू माइनस 2.303 RT log KSP। रीज़न क्या है,
चेक करेंगे आप तो ये KSP आ रही है Ag प्लस आई की, ठीक है ना। अब यहाँ फैराडे नीचे चले जाएगा तो आंसर आएगा -E01 प्लस E02 माइनस 2.303 RT/F log KSP। आर यू श्योर? ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है क्या हो जाएगी, तो पहले तो ये माइनस में है तो माइनस की वैल्यू जो है आपके पास ये प्लस हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा E01 माइनस E02 इज इक्वल टू 0.0596 log KSP। अब चेक कीजिए दोबारा से, ये माइनस है और ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस का सिंबल बाहर लगा दिया तो ये रिवर्स आउट हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने जस्ट KSP के लिए निकाल देनी है। तो E0 कितना है, ये 0.8 है और ये कितना है 0.05916 log 8.7 10 पावर कितना है यहाँ पे -17। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपके पास आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करने पर आपका 0.0596 माइनस 16.06। आंसर कम्स आउट टू बी हाउ मच, आंसर कम्स आउट टू बी -0.95। E01 माइनस 0.8, तो ये माइनस चला जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास, E01 इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.95। अब E01 क्या है चेक करते हैं, देखिए ये है E01, तो क्या है ये आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ AgI NiG, ठीक है जी। तो E01 क्या हो गया, E0 ऑफ आयोडाइड इन सॉल्युबल सॉल्ट इन सिल्वर इलेक्ट्रोड, क्या वैल्यू होगी -0.15 वोल्ट्स। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है -0.1499, तो ये एक्चुअली में 0.15 वोल्ट्स आ गए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी पावरफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। आर यू श्योर? क्लियर? वेरी मच क्लियर।